وہ جو ہے نا آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے قرآن کے خلاف. آج بھی آ کے اس نے یہی کام شروع کیا ہے. کہتا جی میں نے پیش کرنے، میں وہ پہلی ہی ٹرن میں تو کہتا نہیں میں پہلی ٹرن مجھے دے اردو دے دیتی. تو کہتا ہے جی یہ میں پڑھتا ہوں مرزا صاحب کا اقتباس، تو یہ ہے جی عقیدہ مرزا صاحب کا جی کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا ہے جی ایمان ہے اس پہ، اور آگے اقتباس پڑھا. یہ غلط ثابت کریں، یہ غلط ثابت کریں. میں نے اپنی ٹرن میں یہی کہا، میں نے کہا بھی ہم نے پیش کرنے ہیں مرزا غلام قادیانی کے عقائد، تو آپ نے دفاع کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے قرآن کے خلاف ہے. اس میں ہمت ہے کسی کی تو آ جائے، نہیں ہے تو پھر بس ختم ہے بات. اب وہ اس پہ اس نے نہیں، اس بات پہ نہیں آنا تھا. تو میں نے کہا چلو پھر یہ انج نہیں تو پھر چھری ہوتے ہوئے یا خربوزہ ہوتے ہوئے بڑھیا تو خربوزے نہیں جانا نا. جی جی بے شک میں نے بے کہا اگر شک. یہ اس طریقے سے اگر یہ نہیں مانتا واضح الفاظ میں، تو پھر ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں بڑے. اس نے وہ اقتباس پڑھ دیا، وہ جی دوسرے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، تو میں نے محمد رسول اللہ والا نکال دیا سامنے والا. میں نے کہا اے خلاف ہے کر ثابت ہوں. اس کو لگا جی تھا بس کہ بھائی یہ تو بڑا سیدھا سیدھا اپنی طرف سے وہ بڑا سیدھا سا عقیدہ جو ہے نا مرزا صاحب کا، وہ ڈھونڈ کے جی جی لایا تھا کہ یہ تو بڑا صاف ستھرا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خاتم المرسلین کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ دین کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. تو اس نے سوچا ہوگا بھائی یہ تو بڑا سیدھا سا عقیدہ، اس میں کیا غلطی نکالے گا، لا وہ جو نکل بے گئی. شک. اور تبھی وہ بکھلا گیا تھا کہ اب یہ کیا ہو گیا. پھر کہتا نہیں اس کو چھوڑے، ہم وہ دوسری بات پیش کرتے ہیں. وہ بس وہ جو جان چھڑوانے لگا تھا نا بھی یہ بھی بس ادھر سے بات دوسری طرف ہٹ جائے. ہاں جی 1.5 گھنٹہ طے کر کے تے گھنٹہ بھی بڑا اوکھا کڈیا. او ہو بس. بس سن میری سب سے ہن بڑی میں بات کر. یہ ہے کہ ایک ٹائم میں بندہ کتنے جھوٹ بولے گا پھر ایسے. ہاں جھوٹ پہ جی جھوٹ بنانے بھی مشکل ہوتے ہیں نا پھر ایسے. ہاں. ہاں وہ پھر دوجا بھائی پیش کر میاں کو بھی دیتا پتا چل گیا، باڈی لینگویج جڑ دیکھی ہے تھی. میاں نے بڑا مشکل سے اس کو ریسکیو کیا اینڈ پہ آ کے کہ چلیں جی آپ دونوں کی بات کہ چلیں جی آپ دونوں کی بات. یہ میں نے نا غلط بندہ اس کے ہاتھ دے دیا. میاں تیز آدمی ہے، وہ صحیح ہاں جو وہ ہے نا جھٹکا تیز ہے. آدمی ہے، تیز آدمی ہے. تو اس کو سمجھ آ گئی تھی، باقی کو بھی سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو موضوع ہے نا یہ تو بڑا غلط موضوع ہے ان کے لیے. یہ تو اس کو مربی بھی ماریں گے، اس کو خلیفے کو پتہ چلا تو وہ بھی جماعت سے باہر نکال دے گا. یہ تو بڑا کچا موضوع ہے، اس پہ تو وہ ان کے پاس نجات ہی کو نہیں ہے نا بھائی. اگر مرزے پہ بات کریں گے تو پھر تو گئے. ان کے لیے صرف نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے صرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا حیات اور وفات پہ پسائے رکھیں، اور وہیں پہ بس الٹی سیدھی ادھر سے بھاگ جائیں، ادھر سے بھاگ جائیں، ادھر سے نکل جائیں. حالانکہ وہ بھی بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، سارا کچھ ہے، اس کی بات بھی ہو چکی ہے. بھاگتے ہیں اس سے بھی، یہ نہیں کہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ان تو کے وہ پاس وہاں پہ کوشن ہے. استادی لگا رہا تھا نا، وہ اسی السلام طرف ہی تو لے علیکم. کے آ رہا تھا کہ بار بار کہہ رہا تھا وعلیکم کہ ہمارے السلام جاڑی ورحمۃ مرزا اللہ صاحب کہتے وبرکاتہ. دعوے کی جاڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وفات کا مسئلہ، وہ ادھر ہی تو لے کے آ رہا تھا، استاد بن رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے استادوں کو استادی، وہ جی جڑ تھی وہ اسلام کے خلاف ثابت ہو گئی. یہ تو اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. جی بے شک ایسے ہی بس. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ. آپ وہ سنائیں کیا بھاگیا حال ہے؟ ابھی کدھر گیا؟ گٹ کوریں کر رہا ہے. اچھا، اس کا نمبر نہیں ٹریس کیا، اس نے فوراً مجھے بھی بلاک لگا دیا. جی بس اس کا کچھ نمبر نہیں ملا، اور کس چیز کا؟ ایسے ہی بک بک کر رہا تھا فضول میں. بس جی ان لوگوں کا بس مشن ہے نا ایک، وہ آئیں گے باتیں کریں گے سنائیں گے، تو وہ اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں. بس جہاں پہ کچھ ان لوگوں کو موقع مل جائے تو وہاں پہ باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ موقع نہ ملے وہاں سے پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. ایسے ساتھ بول رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ ہیں، ان کی سیرت پہ کوئی بات نہ آئے، ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے، وہی آخری نبی ہیں، ایسا ہے ایسا ہے. اور دوسری طرف سے بات اور کر رہا تھا، اور ایک بات اور کر دوسری رہا تھا، طرف دوسری اور کر رہا تھا. دوسری طرف سے کہتا ہے کہ میں اعتراض پیش کروں گا انبیاء کرام پہ، ان کو ثابت کریں. ہاں جی، اور مولا علی کی شان میں بھی بکواس کر رہا تھا. منافق قوم ہے یہ، منافق قوم ہے یہ. صرف منہ سے بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، ملحدوں سے بھی زیادہ غلیظ قسم کے اعتراض کرتے ہیں. جی جو بے نبی پاک شک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کے حق چار یار جو ہیں ان کو نہیں مانتے، تو کیا ہے یہ؟
क्या ये है? किसी को भी नहीं मानते, ना सहाबा कराम को मान रहे, ना अहले बैत को, किसी को भी नहीं मानते। इनका तल्लक ही नहीं है इस्लाम से, इस्लाम का जी कुछ भी नहीं मानते ये। इनका सारा कुछ मिर्जा ही है। जी अगर ये इस्लाम को मानते होते, चलें बाकी नीचे वाले जो असहाब हैं, अहले बैत अताहार हैं, उनको तो जी चलो एक मिनट ना भी बात करें उन पे। अंबिया कराम को तो जो मानने का दावा करते हैं ना कि हम सारे अंबिया को मानते हैं, और मौजू क्या रख जी रहे हैं कि हम अंबिया पे एतराज करेंगे, आपने उनका जवाब देने। हाँ, अंदाजा कर लो। जी खबीस हैं ये लोग। ये सुभान चाहता था कि हजरत फतेह ईसा पे बात करें, वो कह रहा था ये जड़ है, वो जड़ ही इस्लाम के खिलाफ निकली। जी ये नीचे बोल रहे हैं कि नईम भाई को ऊपर लो, नईम भाई को लो, वो कहना चाहते हैं। आज मैं नहीं भाई को भेजती है रिक्वेस्ट। जी नहीं भाई आ जाओ उत्ते। बाबर भाई आपने रिकॉर्डिंग की है? बाबर भाई भी नीचे थे, बाबर भाई ने भी की होगी रिकॉर्डिंग। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਈਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਈਮ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਈਮ ਕੋਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸਾ ਆਈ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਈ? ਹੈ, ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇ ਕੋ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਫੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਈ ਕੋ 78 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਡੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਨੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਬਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੋ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦਾ ਪੰਜ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮਾਰੋ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਯਾਰ। ਇਸਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਏਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰ 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 ਮੋਰ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕ ਤੋਂ ਬਸਤਗਫਾਰ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ। 6 ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਸਰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਕਿ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ 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 ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਉਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਗਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਬ ਰੱਖੋ ਕੰਮੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਰਮੇ ਖਾਕੀ ਖਲਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਥੋੜੇ और ਥੱਲੇ लोग ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਓ लगे ਜਰਾ। कहना फिर चलो मुसलमान ही मान लो। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਮੰਨੋ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਸੰਨਾ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ, ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵਫਾਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਜ਼ੂਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਕ ਵਾਸਤਾ? ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 25-26 ਰਸੂਲ ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੀ ਕੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਕੈਸੇ ਆ ਜਾएंगे ਜੀ, ਯੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਟੋਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਤਨ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਰਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਹਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਵੀ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਬਿਲ ਤਸਰੀਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਰੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲ ਤਸਰੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਟੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਆਇਆ तो 15 मिनट बोल रहा तो मैं भी काजमी हवाला भेज देता। मैं क्या सिर्फ एक हवाला पेश करना है, बाकी गल कोई नहीं करनी तू। वो सिर्फ इतना लाया तू भी, तेरा दावा है कि कुरान करीम में नबूवत जारी करता है, मिर्जा कहता है खत्म नबूवत बिल तस्रीह जिक्र करता है। मैनू पहले ये समझा दो जो सच्चा केड़ा है, मैं किदी मना। यार कसवे यार जी भी ड्रामा लगा हुआ। तोबा तोबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब भाइयों। वालेकुम सलाम आमिर भाई, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ज़िया भाई माशाल्लाह क्या बात आपने आज, उनके तो पसीने छूट गए थे। क्या बात है यार ज़िया भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। नहीं भाई ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੀਆ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਰੂ ਸ਼ਕਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਮਜਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਤੌਰ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸੂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਿੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਗਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਫੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਇਸੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ सोशल मीडिया से सब ज्यादा लितर इस खाते ना सांगुल ताफे कितने किसी मुरब्बी इतने लितर नहीं खाते जितने इस खाते ने। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ हैं ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਓਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਈਮ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਪੀਏਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ जन्नती जाएंगे इंशाअल्लाह। और दुनिया और आखिरत की तमाम नेमत अल्लाह ताला इन्हां सब नूं नवाजे। आमीन आमीन। दुनिया और आखिरत दी, दुनिया दे भी और आखिरत दी तमाम नेमत अल्लाह ताला इन्हां नूं नवाजे। आमीन। ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਸੁਹੇਬ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਪਾਏ ਆ ਨਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਸੁਹੇਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਕਾਨੀ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਹਕਾਨੀ ज़िया तो भाई मैं थले, ज़िया भाई मैं थले। ठीक है भाई, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ तो बोल नहीं सकता, शोर काफी। अच्छा चले फिर आप जो है ना वो नीचे सुन ले। डॉक्टर साहब आए, बैठ जा यार, तू किधर चला गया? हकानी तो भाई फिर आप नीचे चले जाए, वो आए हैं फिर आसकानी भाई और डॉक्टर साहब आए हैं तो उनको ले लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। आपसे ज़िया भाई एक रेफरेंस ढूंढ मिल नहीं रहा था, वो आपको पता ना मिर्जा हकलाता था, रे नहीं कह सकता था।
परनाले को पनाला बोलता था। हाँ वो कौन सा ये reference? पूरी नस्ल इनकी नहीं बोल सकती सीरतुल डॉक्टर साहब? महदी का हवाला है, मिल जाएगा हाफिज अपना डॉक्टर साहब। मैं कहते हैं हाँ, तो मैं कौन सा, जाऊंगा कहाँ तो है? निकाल देता हूँ, निकलना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके फिर बता देता हूँ 2-4 मिनट तक, मैं आता हूँ फिर। हाँ जी, जिया भाई को तो पता होगा इस ये वक्त सीरतुल भी। महदी का अभी पिछले दिनों पढ़ा था, लेकिन रवायत नंबर जेल में नहीं। आपको याद बल्कि नहीं है मैं- जिया भाई? एक मिनट दे मुझे, जुबानी याद नहीं है, मैं 1 मिनट में निकालता हूँ। हाँ आप निकाल लें जरा। डॉक्टर साहब जी जी। उसकी मैं कह रहा हूँ जिंदा मिसाल तो वो जो फैजा बीबी की नहीं है ऑडियो, वो जैसे उसमें बात करती है, मेरा हाल मिर्जा भी इसी तरह बात करता ना ना ना, फायजा बीबी तो कुछ भी नहीं है। है। अच्छा ये सारे ही मेरा हाल थोड़ा थोड़ा कहलाते हैं। ये वो जो इनका वो पहला खलीफा था, वो दूसरा, वो भी इसी तरह बात करता था। हाँ वो हकीम नूरा मतलब इतना नहीं था जितना मिर्जा कादियानी था। मिर्जा कादियानी तो बोल ही नहीं सकता था, उसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो वो उसका लहजा बड़ा ठेठ पंजाबी था, क्योंकि अनपढ़ जाहिल था ना, तो उस्तादों ने बहुत कोशिश की, पढ़ नहीं सका। फिर वो रे कह ही नहीं सकता था, कुरान पाक उसने ना पढ़ा था ना उसे पढ़ना आता था, तो उसमें बड़ी वो कमाल की खबीस चीज थी मिर्जा कादियानी। 336 नंबर रवायत है जी सीरतुल महदी। सीरतुल महदी है, रवायत नंबर 336 है डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोई कह रहा था कि जी उसे ज़रूरी चाहिए, तो मैंने कहा जी हम बहुत दुनिया को जानते हैं जिनको तो मिर्जे से भी ज़्यादा मिर्जे का पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिखने अच्छा, का असल में तरीका इनका हमने चेक करें। अपने लिखने का- मोबाइल में भी ना एक ऐसी सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लफ्ज लिखते हैं ना तो हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, सामने आ जाता है। लिखने का तरीका इनका चेक करें जरा, कितना महजब तरीके से लिखा हुआ है। कहते हैं हजरत मसीह मुत्तर की जुबान में किसी कदर लुकनत थी और आप परनाले को पनाला फरमाया करते थे। नहीं नहीं, बात यह है, आप इस पर गौर करें कि इसी किताब में लिखा है ना उसने कभी ईद पढ़ाई, ना कभी जुम्मा पढ़ाया, ना कभी नमाज पढ़ाई। एक दफ़ा नमाज पढ़ाई तो फारसी की गज़ल पढ़ दी। तो आप खुद सोचें, ए केड़ा नबी है कि जड़ा कुछ भी नहीं करता। बात यह है कि मिर्जा जब एक तो थत्था था और दूसरा जब कुछ कहना शुरू करता था ना, तो लोग समझ नहीं पाते थे। वो कहते थे कैसा जाहिल का बच्चा, उसको बोलना तो आता ही नहीं था। आप उसके मनाजरे देखें, उसने बोलकर तो बहुत कम मनाजरे किए। और आथम के मौका पर आथम से मनाजरे तकरीरी में वो- मुनाजरा कोई भी नहीं था इसका। नहीं, आथम से एक तहरीरी थे, दो तकरीरी दिन तो नहीं था, बोला था। तहरीरी था। नहीं तहरीरी था आथम मुनाजरा। नहीं, आथम के साथ 2 दिन बोलकर भी हुआ भाई। सैयद साहब सलाम 15 अलैकुम। दिन हुआ उसके साथ, आथम के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर उसने लिख कर दिया, सैयद साहब लेकिन मुझे सुन रहे हैं? 2 मुनाजरे इसने बोलकर भी किए, एक अब्दुल हक के साथ और एक पार्शली। और जब 2 दिन बोला ना मिर्जा, तो उसके बाद इसके रिश्तेदार भी ईसाई हो गए। तो मिर्जे ने कहा ना बोलना चंगा है, नहीं तो मेरी बुढ़ी भी ईसाई होगी तो बड़ी मुश्किल होनी है। सैयद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है पीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर आला शान। तमाम भाई खैरियत से होंगे, नईम अमान भाई। अच्छा सैयद साहब, ये जो है मौजू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कि आपसे ज़रूर है जी। तो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। वो ये है कि कभी ब्रॉड पे वहाँ हमारे जो हज़रत अली साहब हैं, मौला अली, जी जी। हाँ, वहाँ वो किसी कादियानी ने कुछ बदतमीजी की थी आपके साथ, याद है? हाँ वो जो एक है वो अजीब वो सा तलत आदमी। जाहिल, जी जी, वही वही। हाँ वो तलत था ना मेरे ख्याल में। हाँ जी वही था। हाँ तलत। तो उसने बदतमीजी की, उस बदतमीजी को लेकर कुछ साथी हमारे वो जी। काफी नाराज हैं कि ये आमिर नज़ीर के ब्रोड पे हुआ और वो सैयद साहब को ये कहा गया। जी जी, मैं भी आ गया हूँ पीर साहब, इसलिए बात हो रही है, इसलिए ऊपर आ गया हूँ, मैं नीचे बैठा हुआ था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं अली साहब पीर साहब वो अर्ज है कि ठीक है उसने की, और मतलब उसमें नज़ीर साहब तो वहाँ पर मेरे ख्याल मौजूद नहीं थे, वो हम कह गए दोनों नहीं थे। थे शाह साहब, वही हम मैं- दोनों नहीं थे। वही मैं आपसे अर्ज करना चाहता था। कुछ आपका नाम लेके ना बंदे बिस्त हमें ना ब्लैकमेल तंग करने हैं, सिर्फ आपका नाम लेके।
अच्छा देखिए, मैं कह दूंगा, देखिए मैं जो है ना उन्हें क्लैरिफाई कर दूंगा, लेकिन वो उस दिन उन्होंने उसको रोका नहीं, तो उसकी वजह थी कि वो जो आमिर भाई हैं वो कह कर गए थे कि उनका सिग्नल ऑफ है, और मेरे ख्याल अली जो थे ही नहीं ना, वो तो थे ही नहीं। बात हाँ थे ही नहीं, बात ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ना, हम 2 बंदे नहीं थे। बाद में ना अपना बाबर मेहर भाई ने हमें रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई थी ना, उस वजह से कि ये क्या क्या बात हुई है। अरे तो अली कुछ भाई बात बंदों ने कर ये रहे हैं। जी अली मैं भाई, कर रहा हूँ, मैं अली कर भाई थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए ना भाई। चलिए शाह साहब आप करें, आपका नहीं पीछा। बात यह है कि वहाँ उस वक्त जो है आमिर नजीर साहब बिल्कुल था ही नहीं। नहीं वो नहीं थे, वो कह कर गए थे। हाँ, हाँ तो मुझे याद है। अली साहब तो थे लेकिन वो कहीं मसरूफ हो गए थे। मैं मौजूद था, और मैं भी बाद में आया थोड़ा। और दूसरा ये है कि मलिक साहब, मलिक कैसर साहब थे, आप थे, तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की। अब सबके हाथ बांधे हुए थे, हाँ तो जी, कोई नहीं कुछ वो नहीं। है ही ऐसे आदमी, जी जी। मतलब अब बाद में मैंने आया और मैंने अली साहब को कहा भी कि भाई कम से कम किसी को बना के तो जाते, ताकि इस कमीने को जो है वो कुछ उतारते या कुछ करते इसके साथ। तो उन्होंने भी माजरत की कि हाँ मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आमिर नज़ीर साहब कहीं बाद में आए, तो ये बात चला कि इस तरह सा हुआ था। तो आमिर नज़ीर साहब ने कहा किसी ने रिकॉर्डिंग की है तो वो सुना दीजिए क्या कहा है मलिक ने। ये जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो जाहिर बात है उस पर तबसरा भी होता है। तो हल्की फुल्की बात हुई, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब की वजह से गालियां पड़ी हैं, ये है, काफ़ी तैश में आ गए हैं, उनकी तस्वीर लगा के गालियां भी दी जा रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो उसको मेरा जो है ये ना, ख्याल कौन था है कि अगर 2-4 ये, कलमात आप उनको कहेंगे, शायद हमारी बात तो उनको समझ में नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर कहूँगा। बात ये है, एक तो आपका नाम लेके मुहाफिज बात कर रहा था, तो एक ये अवान साहब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ये पीर सैयद साहब। नहीं, आपको पता मेरा नहीं तो क्या व्यू बड़ा मैं क्या मुख्तलिफ है। सैयद साहब को अली कोई साहब, मसला अली नहीं है, साहब हमारे जे पास अगर रोज ਤੁਸੀਂ आते हैं ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ मुहाफिज ਬਰੋਡ साहब। ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ आमिर ਮੈਂ भाई ਸੀ। को तो ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ आमिर ठहरो। भाई अली को तो पता साहब, अली साहब चल जे रही है अगर ना, ਤੁਸੀਂ अली साहब लेकिन अगर सही दूसरे बंदे जो से है ना आपका नाम लेके ना। नहीं एक मिनट, अवान भाई क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, आप तो जी अल्लाह का बहुत शुक्र से अवान भाई, बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं। जी जी पहली बात है कि आमिर नज़ीर साहब ने मुझे मुखातिब करके या अली भाई को मुखातिब करके कहा था कि मेरा सिग्नल नहीं है और मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं, तो उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी बात ये है कि हमें अपने दरमियान तो इत्तेहाद, दोस्ती ही रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन उसका कंडक्ट जो है। उसने बाद में भी एक दिन कोशिश की, उसके बाद भी अभी 2-3 दिन हुए, लेकिन फौरन उतार दिया उनको। तो बात ये है कि आपस में सिर्फ अगर मेरी वजह से ये है तो मैं कहूँगा कि आप जो है ना इसमें से आमिर नज़ीर जो हैं भाई जो हैं उन्हें निकाल दें, क्योंकि हर आदमी नहीं, एक मैं अवान भाई एक बात कहता हूँ, हर आदमी का अपना तरीका है जो बात करता है ना, उनकी अपनी परसेप्शन है। उनका तरीका ज़रा कादियानियत की तरफ थोड़ा सा फ्रेंडली है, लेकिन वो कादियानियत के हक में तो उनकी बात मैंने कभी नहीं सुनी ज़ाती तौर पर, बल्कि वो उनको एक सॉफ्ट तरीके से बताते हैं कि भाई उनका ख्याल ये है आमिर भाई का कि फ़ायदा क्या कि अगर कादियानी आई ना आपकी ब्रॉड पर और आपकी बात ना सुने। मेरा ख्याल जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी का मुसलमान होना तो अल्लाह का इनाम है, और हम तो हक़ की बात करने के लिए करते हैं, कोई सुने या ना सुने हम कोशिश तो करते हैं। तो हर आदमी का एक थोड़ा सा स्टाइल है। अगर उनका ये स्टाइल किसी को लगता है कि वो, चूँकि हम लोग जो हैं हम काफ़ी स्टर्न हैं, सख्त हैं इस मामले में कि हम किसी कादियानी की जो शातमियत नहीं बर्दाश्त कर सकते। आमिर भाई थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं उनको, तो उनका एक अपना स्टाइल है, लेकिन उनका इल्म है इस बारे में, उनकी बड़ी होल्ड है। तो आपस में हमें, मेरा ख्याल है कि बास चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, उनको ठीक कर लेना चाहिए,
और आमिर नज़ीर भाई तो उस वक्त तो आमिर साहब तो थे ही नहीं, तो ज़रा किसी शान, को। मैं यहाँ पे ना एक बात क्लियर कर दूं, जी, तो मुझे आप भी पता ही नहीं मौजूद थे किस, ना ईवान भाई, आप वहाँ पर मैं मौजूद बाद थे। में गया हूँ, मेरी बात तो सुन लें कि मैं जी बाद जी, में गया हूँ, और ब्रॉड मैंने और शाद भाई और जिया भाई ने बंद करवाई है। अच्छा, ये अगर हकीकत पूछते हो तो जी जी, ठीक है, ब्रॉड बंद करवाई है, ठीक है, नीचे जो कुछ भी नहीं, लिखा मैंने गया कोई हमें नहीं बंद करवाई, आमीन। आप लोगों ने बाद में बंद करवाई होगी, मैंने कोई नहीं बंद करवाई, मैं उतर आया था नीचे। जिया भाई, जी जी, जिया भाई आप नीचे उतर आए, हमने उसकी गुजारिश की कि गुजर भाई बैठ के बात को क्लियर करेंगे, प्लीज आप अपनी ब्रॉड बंद कर दें, ठीक है। हाँ, मैंने उधर गालियां मर्जियों को दी हैं और सरेआम दी हैं, ठीक है, और ब्रॉड बंद करवाने में शाद भाई और सब भाई वहां पे शामिल थे कि यार इसको बंद कर दें, अमन नज़ीर भाई को। जिया भाई 20 साल से काम, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आमर भाई एक बंदा अली हो भाई, रहा है, मेरी अली भाई बात सुन एक ले। मिनट है कासम जी। जट है, वो भी मिस गाइड कार है, मैंने रिकॉर्डिंग की है सारी, वो भी मिस गाइड कार है। कोई नहीं, कासम कोई जट बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखें, बात यह है कि जिस तरह अली भाई आपसे है, तो बाज़ दोस्त हमारे हैं, हम तो, मैं तो उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं भी हजूर उनके अली साथ शाह, वैसा ही हूँ जैसे ये मेरे साथ हैं। जी जी, लेकिन अगर मैं कोई गलतफहमी होगी तो उसे हम दूर कर देंगे। दूर कर लें, वो ठीक है। मैं हर एक ब्रॉड में जाके कासम कह रहा है, कासम जट, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, दूसरी आईडी से मैं गया था ना, हाँ, नहीं नहीं, हम तो वो उसका ये कह रहा दूर था कि कर मेरी बात देंगे। सुने, मेरी बात सुने, वो मेरे जी बारे जी, में ये करता है, ये गुस्ताखियाँ करता है, मौला अली के बारे में ये वो, मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो मिस गाइड कर है। अब उस बंदे का क्या करना है, कभी तो आप बैठाएंगे, कासिम जट नाम है। मैं तो मतलब मेरे ज़हन में तो जट नाम की बहुत सारी आईडी आती हैं, कोई अच्छी कोई ये दूसरी अमर तरह भाई की। को पता है, अपना हाँ जिया जी, भाई को भी पता हुआ कासिम जट कासिम की जट बात नाम। कर रहे हैं। अभी भाई नहीं बैठे हुए थे आकाश मलिक की ब्रॉड पे, मैं भी गया, लेकिन मेरी बैटरी डाउन होने मुझे की सारा वजह से पता है। मैं नीचे उतर आया, ठीक है। मैं बात करने लगा था, मैं कहा नहीं भाई बात कर रहे हैं, चलो इनको करने दो, ठीक है। जितना काम जिया भाई ने 20 साल में किया है ना, 20 साल में, डॉक्टर साहब और जिया भाई और इमरान कालू की हिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग तो टिकटॉक पे नहीं आए हैं यार, अभी आए हैं। जितना काम यूट्यूब पे मर्जियों के साथ, स्काइप पे, जितने भी प्लेटफॉर्म थे, जितनी मेहनत जिया भाई, होली कल स्पिरिट साहब आपकी और बात हुई 3 है बंदों अमर ने भाई, की है तो ना। मैंने क्या लिखा है कि जी ये हमारा भाई है, याद है कि भूल गए हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई, मुझे वहां पे बैठे थे, जब बात हुई, आपने रिकॉर्डिंग की होगी, वहां पे रिकॉर्डिंग में सुनना कि मैंने क्या बोला कि यार गुजर भाई ब्रॉड को बंद करो, बैठ के बात करेंगे, ठीक है। वो भी गुजर भी हमारा भाई है, कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमान है वो भी। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि यार वो मरज़ई है, उसने मरज़ई होने की निस्बत से ये काम किया, पता नहीं उसका जज्बा क्या था, अल्लाह बेहतर जानता है। किसी के अमान को देखना है तो उसकी रहानी देखो, उसके अंदर क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम दोनों, ना मैं आपके दिल में झांक के देख सकता हूँ, ना हो हजूर आला शान मेरी दिल में झांक के देख सकते हैं, ना जिया भाई मेरे दिल में झांक के देख सकते हैं। क्या पता मेरा जो मोहब्बत है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मेरी आप लोगों से ज्यादा हो या आप लोगों की ज्यादा हो, मैं आपके दिलों में दिल के हाल नहीं ना जान सकता। हमने उसको बोला कि भाई ब्रॉड बंद कर दे, बैठ के बात कर लेंगे, ये बात हुई, उसने ब्रॉड बंद कर दी। चलो वो हमारा भाई था, चलो उसका भी मेहरबानी, उसने ब्रॉड बंद कर दी। अब मुझे ये नहीं पता कि बात क्या हुई है, अंदर की बात क्या है। कोई बात नहीं, वो उसने आके बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज कर रहा था। तो बड़ी मुझे हैरानी हुई उसके। शाह साहब जी, जो आपको टॉपिक शुरू करना है करें, जिया भाई का भी टाइम काफी यूज कर दिया। हाँ जी, कोई नहीं अली और भाई, हैदर वलैंच भाई क्या कह रहे थे अभी के ब्रोटे लगा के, हैदर को बुलाना ना यार इधर। जिया भाई जो बात करना चाहते हैं उनको करने दें, नहीं डॉक्टर नहीं, साहब को ना मना करें, जो बात करना चाहते हैं करने दें। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने ये बात कहनी है कि हम इस बात को ना, अगर मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हम इसको ठीक क्लैरिफाई कर देंगे। तो जो हम लोग आपस में एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, हमें तो एक दूसरे के साथ ही खड़ा होना चाहिए, बात तो ऐसी है। इस किस्म की बात करना, मुझे इस बात में कि जो काम आमिर नज़ीर साहब कर रहे हैं वो तो बहुत मुद्दत से कर रहे हैं, जब हम लोग करते भी नहीं थे,
ज़िया भाई भी मुझसे, बल्कि मुझे सोशल मीडिया पर लाने वाले ज़िया भाई हैं, इनकी वजह से मैं सोशल मीडिया पर आया। तो जो है ना, हमें एक दूसरे के साथ ना आपस में ये तय करना चाहिए अगर कोई ऐसी बात हो, लेकिन ये कि कोई सरेआम दूसरों के सामने करना, मेरा ख्याल है कि इससे हमें अलग ही रहना चाहिए। क्यों वान भाई, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हजूर अहसन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम और ये कोई मैं लिख रहा है जिस जगह ये कहना है मैं वहाँ शाद जाऊंगा। भाई की अभी बाइकाट करे, कोई शाद भाई की ब्रोड नहीं बंद करवा सकता। पता नहीं उसका मान क्या है, उसकी ब्रोड पे बैठ के 3 कादियानी मुसलमान हुए। हाँ नहीं, आपने देखा नहीं है ज़िया रसूल की साहब की ब्रॉड पर तो खानदान के खानदान उन्होंने कादियानियत छोड़ी हुई है। आप इस बात से शायद वाकिफ नहीं है। मैं जब इनकी बात पर शुरू में आया था ना, ज़िया भाई याद है ना वो ऑस्ट्रेलिया की फैमिली जिसने इस्लाम कबूल किया था, अभी तो मुझे 2-4 हफ्ते हुए थे, और आपकी वजह से उन्होंने किया, याद है आपको? जी जी याद है, आप ताज़ा ताज़ा ही आए थे तब। हाँ, और वो तो एक वाकया जो दिन में अटक गया, क्योंकि मैं उन दिनों नया नया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद तो एक लाइन लग गई। भाई आपने कह दी है कि अमेरिका से आपको याद है वो लड़का फोन करता था कि हमारा पूरा खानदान कादियानियत छोड़ दी, और ज़िया भाई को तो चनाब नगर के लोग फोन करके कहते थे हमने छोड़ दी हुई है, बस फंसे हुए हैं यहाँ पर। बहुत कमाल के इन लोगों का काम है। और आमिर नज़ीर साहब जो हैं, ये मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं आऊँगा, तो आमिर नज़ीर साहब आया करते थे और ये बात किया करते थे। बस उनका एक स्टाइल है, अपना अंदाज है उनका, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, बाज़ लोगों को नहीं लगता, लेकिन ये बात कोई भी नहीं कह सकता कि वो मतलब ख़त्म नबूवत का काम नहीं करते। वो काम वही करते हैं अपने स्टाइल में थोड़ा सा, लेकिन उनका इल्म भी माशाल्लाह बहुत है। तो इसके लिए हम उनके इज़्ज़त करते हैं कि उन्होंने जो भी करते हैं। ये हर एक का काम नहीं है वान भाई, हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है हजूर शान, हम तो गुनाहगार लोग हैं। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह आप बहुत आगे हैं, और बल्कि मैं तो आप लोगों की वजह से ही यहाँ पर आता हूँ। नहीं नहीं, हम लोग आपकी वजह से आते हैं। ना ना ना, एंड ना क्या करो। हमें और अली भाई आप फिक्र ना करें, और पीर साहब आपने तो मतलब मैं आपको अपना नंबर डीएम कर दूंगा, आप मुझे डीएम करके बता दिया करें। अच्छा, एक और बात है नंबर, मेरे पास है नंबर। एक और हाँ बात जी, है, पीर साहब को भी दे दें। जी जी पीर साहब। एक और बात है, वो जहन में भी रहे आपके। एक तो ये बात है, इशू है आपके बारे में जो मैंने बताया। दूसरा इशू ये है कि कादियानी जो है आते हैं, उनसे मुनाजरा करता है आमिर नज़ीर साहब, और वहाँ पर अगर कोई साथी आता है इनको गाली देता है तो उसको उतार देते हैं, और नीचे अगर किसी ने कादियानी को गाली दिया उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो इस पे भी वो शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि कादियानी अलैहिस्सलाम का जो पढ़ते रहते हैं तो वो उनको मना नहीं करते। नहीं नहीं, वो करना चाहिए। देखें वो पीर साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बल्कि मेरा तो आपसे इल्म भी कम है इस मामले में, कि इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को ख़त लिखा तो बड़ी इज्जत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मकुकस को मकुकस अज़ीम लिखा। लेकिन जब ख़त लिखा गया मुसलमा अल-कज़्ज़ाब को, उसका नाम मुसलमा था, आप जानते हैं, उसका नाम में ये नहीं थी। ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने, मुसलमा का मतलब होता है साबित शुदा, बड़ी इज्जत वकार वाला, उसका बाप हबीब भी बादशाह था, लेकिन सहाबा ने उसमें ये लगा दी। जब मुसलमा अरबी में आप जानते हैं, माशाल्लाह आप तो अरबी ज़बान बोलते हैं, इसका मतलब है छोटा, कमीना और खबीस बनता है उर्दू में इसका, मुसलमा का। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को ख़त लिखा तो उसको लिखा कि मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल अल्लाह इला मुसलमा अल कज़्ज़ाब। कोई इज्जत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उल्टा उसके साथ लिखा अल कज़्ज़ाब, यानी कि झूठों में भी सबसे बड़ा झूठा। तो यही बात जो है, दूसरों को ख़त नहीं लिखा, लेकिन असवद अंसी के बारे में भी हदीस में आप देखें। हालांकि आप जानते हैं कि साहिब इज़्ज़त का लफ्ज़ नहीं है अरबी ज़बान में, साहिब सना का मतलब होता है, सना का सरदार और साहिब यमामा।
यमामा का सरदार। तो इस बात पर मतलब मैं किसी को कह तो नहीं सकता पीर साहब, लेकिन किसी को ये इजाज़त देना कि उन पर सलाम हमारे सामने भेजे तो वो मतलब कुछ ज़्यादा हो। मतलब आप मुझे बता दें, आप तो माशाल्लाह मैंने आपको बता दी है वजह मैं क्या समझता हूँ इसकी, आप बता दें तो देखिए शायद। मोहतरम भाई, बात यह है कि ये जो आप लोग सब कहते हैं ना साहब साहब, मैं तो इससे भी मैं राजी नहीं हूँ। लेकिन ये इस पर मैंने तो कभी नहीं कहा पीर साहब। एक बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर साथी कहते हैं ना मिर्जा सांप, मैं तो इस पे मुझे तो नाम ही लेना पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ तुम लोगों का कायद, तुम जिसको नबी मानते हो, मैं तो यही कहता हूँ। खैर, लेकिन ये कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए कुछ साथियों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, लेकिन हम उनके ईमान पे तो शक नहीं कर सकते ना। वो गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। रही बात ये जो दुरूद पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं ना कि हमारे मुसलमान भाई पढ़ते हैं, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना भाई। खैर, आपके साथ भी गुफ्तगू करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन इस पे मैं आप पे नाराज हो जाऊं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है पीर साहब, मतलब मेरे सामने जब पढ़ते हैं मैं उनसे गुफ्तगू बंद कर देता। हाँ, एक और बात मोहतरम, बात यह है कि कुछ हमारे साथी ये हैं, उनका ख्याल ये है कि इनसे बिल्कुल बात नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इनको गाली दे देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक नफ्सियत ये है। दूसरी नफ्सियत ये है कि नहीं, बात तो कर लेनी चाहिए, अच्छे अंदाज में अदब और अखलाक के दायरे में बात कर लेनी चाहिए। ये दो नफ्सियत हैं हमारे भाइयों का। अब ये है कि दोनों के बिल्कुल मुतजाद हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है ये नफ्सियत के गाली गलोच, ठीक है, अपने ब्रोड खोलो और उस पर बात करो। और जो गाली गलोच करते हैं उनकी नफ्सियत वो है, वहाँ मत जाओ। और जो ये इस बात के कायल हैं कि नहीं गाली गलोच करने चाहिए, तो वो उनके बरोड़े में ना जाए, लेकिन हम आपस में लड़ भिड़ लें, ये को तो दुरुस्त नहीं होगा ना भाई। है कि नहीं सैयद साहब? हाँ, बात आपकी ठीक है। देखिए, बात तो करनी चाहिए ना, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बताऊं कि आप तो शायद सोशल मीडिया पर कादियानियों से मिले हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूँ। कादियानी जो है ना, इस बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, और ये इस बात के सीजनड हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। मतलब अपनी किताबों में लिखा छोड़ते होंगे, लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे और यहाँ पर भी जब इंग्लैंड में आए तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जानते हैं कि इस तरह की बातें जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मखसूस हैं करनी ठीक नहीं है, और ये मुसलमानों के सामने करते नहीं थे। ये अभी मैंने देखा है इनको, मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि अब इन्होंने एक खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है जंग का इस्लाम के ख़िलाफ़, और अपने जो इनके गलत अकायद हैं उनको ये खुल्लम खुला कबूल करने लगे हैं। पहले तो कबूल भी नहीं करते थे, इनकार कर देते थे कि हमारा ये अकीदा ही नहीं है। और इस बात पर अगर आप इन्हें करीब से जानते होते और आपने इनको एक अरसे से देखा होता तो आपको बड़ी हैरानी होती कि आज का कादियानी जो इस किस्म की शातमियत कर रहा है, इनके दिल में तो हौसला ही नहीं था ऐसा करने का। लेकिन ये व्हाट्सएप की दुनिया में कर रहे हैं ना भाई, व्हाट्सएप पर भी ऐसा नहीं था। और ये टिकटॉक पे ना पर्दे के पीछे कर रहे हैं, आमने सामने तो नहीं कर रहे ना, इनकी हिम्मत नहीं है। नहीं, आमने सामने भी ऐसा करते हैं। अब आपको ने शायद सुना नहीं है इन्हें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दावा किया, और मैं आपको कहूँगा कि 2010 तक इनकी किसी ऑफिशियल साइट पर ये नहीं कहा जाता था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक सब्सटेंटिव नबी या रसूल है, बल्कि ये कहते थे कि वो ब्रूजी है, ज़िल्ली है, इस किस्म की अजीब टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल था। लेकिन अब मिर्ज़ा मसरूर जो है उसने तो ऐलान कर दिया कि कोई ज़िली ब्रूजी बात नहीं है, वो नबी भी है और रसूल भी है। आप जानते हैं इस बात को? नहीं, मुझे ये नहीं पता। हाँ, नहीं, आप ये जान लें बात। फिर ये जो इनका अजीबो गरीब किस्म का जाहिल सा खलीफा इन्होंने रखा हुआ है, उसने ये कहा अपना डॉक्टर साहब, ये बात किस खुतबे की है? वीडियो है या के वीडियो बता दे तभी मैं तारीख निकाल दूंगा। हाँ, मैं ये तो आप इनसे पूछ भी लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि एक दफ़ा तो मैंने अलहदा जो इनका है MTA, वो इंटरनेट पर आता है यूट्यूब पर,
तो किसी ने सवाल किया जी ये जिली बरूजी, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो नबी भी है और रसूल भी है, इनका ऑफिशियल स्टैंड है आज का। आप इनमें से किसी से इनके हफ्ते में 5 दिन कोई एक मुरब्बी जो है ना, प्रॉपर मुरब्बी, आप देखें यहाँ तो हर एक को मुरब्बी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो 1-2 शायद मुरब्बी देखे, वो जो कनाडा वाला है, या एक वो इंडिया का जाहिल सा आता है वहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इनके जो MTA है वहाँ पर प्रॉपर मुरब्बियान हैं जो ट्रेंड हैं और इस जमात के लिए काम करते हैं वो, और उनकी ज़िंदगी का काम ही ये है। वो अल्लाह अलान कहते हैं, मैंने खुद सुना, मुझे बड़ी हैरानी हुई। और जब मैंने पहली मरतबा उससे सुना, वो एक मुरब्बी था जवाब दे रहा था सवालों का, तो इंटरनेट पर जब ये 2-3 साल की बात है, तो मैंने फिर सवाल लिखा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मैंने ठीक सुना? उसने कहा बिल्कुल ठीक सुना। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, कहता बिल्कुल ठीक है जी, वो नबी भी है और वो रसूल भी है, कोई जिल बरूस नहीं है इसमें। और बात एक लिहाज से पीर साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि नबूवत में कोई जिल बरूस होता नहीं है, और ये बात असेंबली की कार्रवाई में भी लिखी हुई है और बहुत सारी कुतब में भी लिखी हुई है, और कंपैरेटिव रिलीजन का एक स्टूडेंट भी जानता है कि जिल और बरूज इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं है, ये तसव्वुर हिंदू वेदास में से लिया गया है, इसका इस्लाम से दूर दूर का लेना देना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं पीर साहब की, इन्होंने अपनी पॉलिसी बड़ी ड्रास्टिकली चेंज की है, और इनका हमेशा से एजेंडा यही रहा था कि अगर इनके हाथ किसी ना किसी तरह की ताकत आ जाए, तो मैं कहता हूँ आप इन्हें थोड़ी सी ताकत दे के देखें, ये तो मतलब जो आप हिटलर को और चंगेज खां ऐसे सारों को भूल जाएंगे, जो इनके जो मिर्जा खानदान है वो तो बहुत इंतहाई जालिम किस्म की चीज है, क्रिमिनल, जुर्म पेशा। मैं उनको 1 to 1 जानता हूं, मिर्जा खानदान, उससे बड़ा जराइम पेशा लोग है ही नहीं है दुनिया में। आप इनकी कंस्ट्रक्शन को देखें, आप इनकी हर बात को देखें, तो आपको सिवाय जुर्म के कुछ नजर नहीं आएगा इनमें। और इसके बाद अगर कोई आपके मुंह पर आकर अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक ऐसे शख्स के लिए कहना शुरू करे, पीर साहब, हमारे सामने तो पूरी जिंदगी है मिर्जे की, वो तो इंसान क्या पीर साहब, बात यह है कि अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ें मिर्जा कादियानी की, और एक किताब है किताबुल बरिया, आप उर्दू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बोलते हैं, शायद पढ़ भी सकते हो, तो किताबुल बरिया एक किताब है, उसके वॉल्यूम 10 में है, और वो कोई 200-250 सफ़े की किताब है। मिर्ज़ा कादियानी ने उसके हाशिया में जो फुटनोट्स और फुटनोट्स ऑफ फुटनोट्स हैं, उसमें लिखी है अपने ज़ाती ज़िंदगी की कहानी, आप पढ़कर देख। इतना झूठ, इतना दजल, और इतना, मैं कहता हूँ कि अगर आप खुद इसकी दी हुई कहानी पढ़ लें ना मिर्ज़ा कादियानी की, आप कहेंगे कि ये क्या बात है। तो उसके बाद अगर हम जैसे लोगों के सामने किसी को कोई अलैहिस्सलातो वस्सलाम कहे, तो हम बिल्कुल उसको रोक देते हैं, हम कहते हैं नहीं ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, इजाज़त ही नहीं है, और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आप तो जानते हैं पीर साहब, हम तो आपसे भी सीखते हैं। तो बाकी जो आपस में एक दूसरे की बात है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए, उसी में हम सबका भला है। हाँ बिल्कुल, बहुत जज़ाकल्लाह। बस इतना ही मैंने तो बता दिया, अपना तो बता दिया मैंने, शायद नईम साहब को भी मालूम होगा। आमिर साहब से तो मैं कई मरतबा पर्सनल में भी, और ये कि ये जो सांप है, ये बिल्कुल मैं उसको मुनासिब नहीं समझता, और आज तक जो है कभी शायद सुन के मुंह से निकल जाए, लेकिन मैं इसको भी सही नहीं समझता। लेकिन ये कि बात को बढ़ाने के लिए चंद भाई अगर इस बात पे राजी हैं, नहीं हम उन्हें रोक देंगे पीर साहब, अगर मेरे कहने से कोई रुकता है तो इंशाल्लाह। वो तो उनका भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा शायद आपकी बात कुछ असर कर जाए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बदनामी के से और क्या होगा, वो कुछ तो नहीं होगा। नहीं वो मैं ज़रूर इस बात, मुझे पता है आप मतलब मेरे तो वो लोग जो है ना बड़े, मैं तो उन्हें अपना दोस्त समझता हूँ, जो आदमी जो भी कहता रहे, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर एक का अपना अंदाज है, और कोई अच्छे तरीके से करता है तो कोई
भाई उसको मेन तो बात ठीक यह है नहीं जिस तरह लगता। आप कह रहे हैं कि हर आदमी का अपना अंदाज है, आपको किसी का अंदाज पसंद नहीं है, ठीक है, ठीक है, मत जाए, उसको दफा करें, लेकिन ब्रोड खोल के गाली गलौज करेंगे तो ये तो अपनी बदनामी होगी ना भाई। नहीं नहीं, आपस में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं तो तो कहता यही तो हूँ। ताने हमें मिलते रहते हैं ना, क्योंकि हम नहीं भी नहीं, इंसान है, कभी कुछ भूल चूक हो जाए तो उसी को रिकॉर्ड करके और उसी को पेश करते हैं, हाँ है कि नहीं बिल्कुल भाई? बिल्कुल ऐसा। तो इसको जवाब देते रहो, क्या फायदा फिर इन चीजों का? हाँ, जिसका कोई फायदा हो तो ठीक है, आपने किया, लेकिन वहां फायदा कुछ भी नहीं है नुकसान के सिवा। हाँ नहीं, उसको मैं मतलब मेरे कहने से अगर कुछ होता है तो ठीक है इंशाल्लाह मोहतरम, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़रूर जज़ाकल्लाह। करूँगा। जज़ाकल्लाह पीर साहब, आपने ये मेंशन किया, और अली भाई मैं बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दे, मैं जाकर ये बात कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर जनाब, साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत सलामत शुक्रिया। रहें आप। ना ना डॉक्टर साहब आप इधर हैं? गले सारे खामोश हो गए हो या मेरी आवाज नहीं आ रही? तेरी आवाज नहीं आ रही, इस ते कर रहे गल। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बात कीजिए। कोई यार अपना मैं रिकॉर्डिंग पे चेक करना है कसम ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਸਮ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਕਾਇਆ ਸੁਬਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਵੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ भाई ਆਵਾਂਗਾ मैं किसी को कोई नहीं समझाना, आपे समझा लो जिदा दिल करदा। मैं किसी बंदे ਨੂੰ कोई गल नहीं करनी, जिदा जो दिल करदा करे बस। मैं चुप करके अपने काम लग्या, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਲੋ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਜੀਓ ਜਿਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੱਸਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਵਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਿਆ ਸਲਾਤ ਭਾਈ ਲੈ ਅਸਾਂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਬ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਬ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਮੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰੱਦ ਨਾ ਬੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸਾਂਝੇ, ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ, ਜਵਾਬਨ ਓਕੇ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਿਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਤਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਬਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਈਮ ਸੁਣ ਭਾਈ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਖੁੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਹੀ ਗਏ। ਪੜ ਲੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੈਸੇ ਪੜਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਯਕਦਮ ਬੜੀ ਬਰਾੜ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਭ ਅੱਜ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਹਿਰ ਨਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਈਮ ਭਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਈਮ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਈਮ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਆਹੋ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾ, ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा ज़िया नहीं, भाई, गाल छाल नहीं कटी अली सी, साहब, गाल उस्मान छाल नहीं भाई, सी, इजाजत चाहता गाल हूँ, वगैरह अस्सलाम नहीं कटी। वालेकुम। फिर ठीक उसका है, नहीं ठीक भाई, है। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਵਾਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ गाल ਵਾਰੀ कटना ਲੜਾਈ अपना ਕੀਤੀ, शेवा ही 3 नहीं 4 यार, ਸਾਲ। जज्बात बंदे ने मुंह कोई लफज निकल वेंदा वैसे शेवा नहीं है साडा गाल कटना, जज्बात बंदे ने किस टाइम बंदे कोई मुंह गाल निकल वेंदी
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤੇ ਉਸਾਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 4 ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਹੋ ਠੋਕਣਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 2 ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਿਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਖਾਉਣ ਸਿਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਕੰਮ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਸੇ ਕਿਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਮਾ ਲਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਕਿਤੇ ਠੋਕਣੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਲੇ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਨੀਲੀ ਡੀਪੀ ਵਾਲਾ। ਚੰਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿਤੇ ਠੋਕਣੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਠੋਕ ਲੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾੜ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਟਿਕਟੋਕ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮਹੱਜ਼ਬ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। 1489 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ 1489 ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ। ਇਹ 1489 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਬਰੇਲਵੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣੇ।
ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 1000 ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਰਦੂ ਚ ਪਾਈ ਆ, 1000 ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਆ ਅਰਬੀ ਚ, 2000 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਬਈ